there are so many things which I have told which I myself do not practice, लेकिन practice करके तो बहुत फायदा मिला. But again the destructive human nature, I have again gone back to my पहले का practice जो. So hello guys, welcome back to the Skill Valley show. मैं हूँ रिया, आपकी होस्ट एंड फ्रेंड, और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं शी इज मिस मथुरा भौमिक, जिन्होंने किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल स्टेट को क्लोजली अंडरस्टैंड किया है एंड उन्हें हेल्प किया है हाउ टू लिव बेटर. सो without any further delay, let's talk to her right away and find out what we should do to keep our mental state healthy. So here we have her. Hello Miss Mithura Bhaumik. Hello Riya. Hello Riya. Hello. How are you? So how are you doing? Yeah, I'm doing fine. Doing fine. How are you? I'm great. And yeah, so how's the weather there? The weather is too hot. So extremely scorching heat there. Okay, so yeah, let's just start with what exactly is mental health. क्योंकि जब भी हम mental health के बारे में बात करते हैं, लोग उसको craziness के साथ या फिर कुछ ऐसी चीज के साथ लिंक कर देते हैं ताकि हम उसके बारे में ज्यादा टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, either with friends nor with parents. So what is exactly mental health? क्या happiness is what we think is mental health? So please throw some light on this topic. Sure. So basically mental health is the practice of keeping your mind healthy. बस अपने माइंड को हेल्दी रखने का, अपने माइंड को फिट रखने का, स्टेबल रखने का, अपने माइंड को ऐसा बनाना so that we can cope up with the changes of life. And अभी के सिचुएशन पे there could not have been a greater and a more drastic change than the time we are going through. So it is just a faculty, mind, the brain, that we can use in order to live to our optimum potential. बस इतना ही है. And the next question was कि ये happiness हमेशा happy रहना है क्या, correct? So actually let's ये समझने के लिए let's think about our physical health. Okay, for example we are having a hand pain, हाथ में थोड़ा सा दर्द है, but overall we are fine. ना कोई ब्लड प्रॉब्लम, ना कोई ब्लड प्रेशर का इशू, ना कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ना कोई लिवर इशू, नथिंग, बस थोड़ा हाथ में दर्द है. तो इज द पर्सन नॉट मेंटली, इज द पर्सन नॉट फिजिकली फिट? द पर्सन इज फिजिकली फिट, सब कुछ ठीक है, सब फंक्शन ठीक है, बस हाथ में थोड़ा सा दर्द. सो द सेम इज विथ द मेंटल हेल्थ इशू. यू माइट बी टोटली फाइन, यू नीड नॉट बी ऑलवेज हैप्पी. Because you know that's natural. Happiness is after all a transient and an illusory phase, right? Absolutely. An illusory phase. It won't last long. So if we think happiness is a state, then actually it can't be a constant state. It will be unachievable. We can't achieve happiness always, right? Absolutely. तो बस बात इतना ही है कि ऐसा रखना है खुद के माइंड की, अगर दुख भी आए, अगर ओवर थिंकिंग भी आए, अगर एंजाइटी भी आए, हम कोप कर पाए, ना कि हम हमेशा खुश रहे, बिकॉज दैट इज बीइंग फेक. So to be very honest with you, to be very transparent with you, the goal is not to be happy 24/7. The goal is to be fine, to be acceptance about, to be accepting about our emotions and to deal with them. So it's like being ready for every type of situation that you are facing. Exactly. So can we say कि satisfaction can be a way we can say कि mental health को हम इसके साथ link कर सकते हैं कि हम अपने आप से satisfied हैं, right? Yeah, you can say अपने आप से satisfied होना. At the same time अगर हम अपने आप पर dissatisfied हो तो हमें self harm नहीं करना. Even that is a very important point of mental health. कि हमेशा हम satisfied भी नहीं रहेंगे, but हम dissatisfied होकर कुछ गलत ना कर दे खुद के साथ या दूसरों के साथ. So basically the idea is anything can happen to us at any point of time. Unfortunately, that is the bitter truth. Anything can happen to us, but our strength should be there to be able to cope up with the same. That is it, in a healthy way, without feeling overburdened. So one other thing that is कि mental health को हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते. हम लोग mental health को समझते हैं if I'm mentally not ill, I'm absolutely not ill with any kind of mental illness if I don't have any. I'm mentally fit. So is this a right idea, right thought process कि अगर मैं mentally ill नहीं हूँ या फिर मुझे कोई दिमाग की बीमारी नहीं है तो मैं mentally fit हूँ? Is this a right thought process? No, actually not necessarily, because पहले जान लेते हैं मेंटल इलनेस क्या है.
Mental illness, basically, these are conditions that can be diagnosed through certain, you know, parameters, through certain parameters जो कि बहुत fixed है. For example, chronic anxiety, या फिर depression, या फिर you can say compulsive disorders, developmental disorders like there are a lot of developmental disorders like autism, right? तो ऐसे है. But mental health can be actually anything. It can be the fear for the unknown. It can be anxiety. It can be overthinking. It can be insecurity. कुछ भी. इसमें ना हमारा कोई पर्टिकुलर हम डायग्नोस करने का हमेशा क्राइटेरिया नहीं रहता. It can be something as general as not wanting to eat the entire day, not wanting to get up from your bed even if you're perfectly fine. कि सब कुछ सही चल रहा है, जिंदगी सही चल रहा है, लेकिन आपको बस उठने का मन नहीं करता. Now the issue is, अगर mental health का जो issue है, ये अगर हम unaddressed रहे, अगर हम address ना करें, तो ये prolonged level में जाके it can turn into a form of mental illness. That is the thing. अगर हम root पे काम करते हैं, it will remain a mental health issue and slowly we can actually pacify it. हम totally इस चीज को बंद कर दे सकते हैं. लेकिन अगर हम ये address ना करते हैं इन चीजों को, तो फिर ये जाकर मेंटल इलनेस बन सकता है एंड क्रॉनिक चीजें बन सकता है, लाइक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स एंड मोर. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन कि एक बंदा, मतलब एक इंसान अंदर से थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है, व्हाट इज द मेन रीजन कि कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी इंसान को होती होगी? एंड नाउअडेज इट्स लाइक कि चिल्ड्रंस आर फेसिंग अ लॉट. आई मीन rather than मतलब teenage से लेके adulthood तक, there are many children who, in fact, 1 to 2% of every 10 is like he or she is facing some kind of mental health problem. So what is the reason behind this? And is there so any health issue means what is a common, and plus what is a common health issue that the children are facing right now? So what can it be and how to help them? So basically जो आपने पूछा कि reasons क्या है, what can be the cause of mental health issues? So first of all, it can be genetic issues. Now studies show that autism can actually pass from generation to generation, right? So first of all, it might be through biological reasons, it might be through genetical reasons, it can also be due to other reasons like childhood neglect. किसी को neglect करना, कोई child को neglect करना, या फिर isolation, राइट? या फिर कोई चेंज के साथ कोप अप ना कर पाना. फॉर एग्जाम्पल, इमीडिएटली एक जगह से किसी को हायर किया गया, हायर एंड फायर काइंड ऑफ कल्चर दैट वी आर वेरी मच एक्सपोज्ड टू, स्पेशली इन द प्राइवेट सेक्टर, कि जॉब मिले, फिर इट्स अ वेरी हाई सैलरी हाइक एंड एवरीथिंग, एंड इमीडिएटली दे आर फायर्ड. सो दैट्स अ मेजर चेंज, फाइनेंशियल लॉस, या फिर दिस इज अ मेजर चेंज. सो कोई चेंज होना, देन यू कैन से पॉवर्टी कैन बी अ रीजन, substance abuse can be a reason, then social isolation, someone being a victim of a violent crime, not necessarily a victim, also a witness. I know someone personally जिन्होंने अपने आंख के सामने एक एक्सीडेंट देखा, and she actually was not talking properly to anyone for the next 2 months. बस जितना बात हो रहा है, she was just replying. So if you not necessarily you're lucky if you're not having to go through any मतलब violent कुछ act, लेकिन अगर आप देख भी रहे हो, ये भी आपका सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव दे सकते हैं. So that is a major cause. There are other, so an interesting statistics is there that I would like to share. A research of population sample suggests that a surprising 60% of people above the age of 16, they have anxiety. Okay, and they are reported to have faced emotional neglect. And so Ria, if you don't mind, I would like to throw some light on emotional neglect, जो कि एक बहुत major cause है children psychology. One of the major reasons, as I've said, that's childhood neglect. So a child is mostly, I have seen that children जो one-to-one sessions में लेती हूँ children के साथ, I have seen mostly that
वो लोग ऐसा बोलते हैं that you know they are not totally loved by their parents, they are not accepted by their parents. So ऐसा neglect मतलब क्या? Neglect can be something as petty as एक बच्चा जब बात करता है, ऑब्वियसली हम लोग की तरह फ्लो पे बात नहीं करेगा, अटक अटक के बात करेगा, मम्मी तब ना, और फिर है ना, क्या है ना, तो मम्मी क्या बोलेगा, ओके ओके फाइन ठीक है, जल्दी जल्दी बोलो क्या है. Even that is a emotional neglect. You should let your child complete what the child is saying and you cannot expect कि वो एकदम जल्दी से बात बोलेगा, एकदम फ्लो पे बोलेगा, नहीं बोलेगा. So is it yes, is it कि जो parents की mentality में भी बहुत changes आए हैं, because earlier parents were like it's okay and they used to give time to their children. Now it has changed. Definitely. Yeah, it has changed, and that's why the kids are feeling a little bit lost in their world. Definitely, yeah. So, you know, the other day I was watching a documentary about कैसे अपने दोनों parents ही phone पर लगा रहता है, and the child, you know, what a child goes through, what a child feels. So there was also a short film, अब पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, because you are also a Bengali. So there was a Bengali short movie कि एक child बोल रहा है कि मुझे मोबाइल फोन बनना है, I want to be a mobile phone. क्यों? क्योंकि मम्मी पापा हमेशा मोबाइल फोन पर लगा रहते हैं. So that is the thing. बस चाइल्ड का दिन कैसा गया, एक सिंपल चीज ना सुनना is a major cause of emotional neglect. You know, so one client, एक बच्चा है एकदम, she was actually telling me कि दीदी मुझे आपसे बात करना है हर रोज, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का तो इतना टाइम नहीं है. And you would be shocked to hear the next thing that she told. She told me that मेरे दीदी से तो मम्मी पापा बहुत बात करते हैं लेकिन मुझसे नहीं. So I asked naturally that ऐसा क्यों? तो बोला कि मेरा दीदी को हमेशा 90% के अबव मिलता है लेकिन मुझे नहीं, मैं 70s में मुझे मिलता है. So toxic comparison जो होता है वो इतना कम एज से एकदम माइंड पे घुसा देता है बच्चों को, that the people, the children, they think that they are not intrinsically valuable. They are not intrinsically valuable. For them to be valued, they need to score better than the sister. They need to score better than their brother. So ये जो thought है कि no baby, you are valuable the way you are. You are really worth of something. You are great. You are loved by us. ये feel नहीं होते children. And she is always like, you know, Didi, my Didi is very brilliant, but I wish I can be like her, so I will be loved. So, you know, loved, then where is the unconditional love? You know, we all hear things that parents actually love us unconditionally, but ये सब जब real life one-to-one session लेती हूँ बच्चों को, then I'm very sorry to say, मुझे कई बार feel होता है that parents don't always do, you know, give unconditional love to their children. Because अगर ऐसा होता तो उनको क्या लगता कि मैं जैसे हूँ my parents love me. But they feel love is something that needs to be achieved, not something that they will be receiving naturally. That is not a natural state of being. That is a state of achievement. Unfortunately, love becomes a state of achievement for children, which is a sad reality. तो ये इमोशनल नेग्लेक्ट ही बाद में जाके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं खुद के, एंड ऑल्सो इनसिक्योरिटी. यू नो, these people often क्या होता है, वो तो खुद के खुशी में if they are doing good, they will always compare कि मैं किसी और से बेहतर कर पा रही हूँ. बड़े होके भी ऐसा नहीं होता कि ये बचपन में ही ये लिमिटेड रहता है, बड़े होके भी, बिकॉज मम्मी पापा ने क्यों ये सिखाया कि तुम्हें दीदी से बेहतर हो. तो अगर तुम्हें दीदी से बेहतर होना है तो बड़ा होगा तो तुम्हें अपने कोलिग से भी बहुत ज्यादा बेहतर होना है. तो अगर कोलिग को कोई रिकॉग्निशन मिलता है, कोलिग को कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो फट जाएगा अंदर से पूरा जेलसी का बैलून. Actually, yeah. So they can't enjoy their own success, they can't enjoy other people's success as well. So if they're insecure, more than 70% blame goes to the parents, unfortunately. So you know, one message tell me. Yeah, please continue. So one message actually I would like to put forward to all the elder sisters, to all the elder brothers जिसके पास छोटे छोटे बहन है, या फिर अगर कोई पेरेंट भी ये वीडियो देखता है, तो कुछ कुछ टिप्स है, कुछ रिक्वेस्ट है rather, जो कि मैं अपने साइड से बोलना चाहूंगी. फर्स्ट है, प्लीज लिसन टू देम uninterrupted. Don't interrupt them. Listen to them and make them talk about their feelings.
Right now you are the channel. If you are the elder sister, yeah, for example, if I am the elder sister to my small sister, then I am the only channel my sister has. वो अगर बात कर पाएगा, I am the only outlet she has, right? So let them talk about their feelings. In fact, उनसे ये सवाल पूछो that how are you feeling? How did you feel today? अब तो फिर भी ऑफलाइन स्कूल नहीं हो रहा है, तो आपका ऑनलाइन स्कूल कैसा था? कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगा? Make them talk about their feelings. They will feel validated because as children, they're emotionally dependent on us. So their emotional validation should be through us. हमसे ही उन लोगों का इमोशनल वैलिडेशन होगा. They will be feeling validated. बस कुछ चीजों कहने से कि हाँ ठीक है, तुम्हारा दिन अच्छा था, थोड़ा और बताओ क्या था, मैम को आज कैसा लगा, and all those things. Number 3 point, what you can do is try to understand. समझो, अगर वो बोल रहा है कि मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं, तो फिर पसंद क्यों नहीं है? If she is a girl child, it's a matter of greater concern, क्योंकि बचपन में molestation जब होता है ना, even while she is not aware of what molestation is, it goes through a long way. It goes through a long way. 50-60 एज हो जाता है, फिर भी that childhood trauma is there always. So अगर कोई बता रहा है कि और आजकल तो the bitter reality is again that सिर्फ girl children are not prone to molestation. We can't actually assure a very safe world for boys also, right? So if they do not want to visit certain places, if they do not want to meet certain people, ask them why. So just try to understand them. And the last point is truly support them. Supporting does not mean वो लोग जो बात कर रहा है तुम मान लो कि हाँ ठीक है, तुम ऐसे मत जाना स्कूल नहीं. Supporting मतलब just to make them feel I am with you, hold their hands, be there with them. That is unconditional and that is priceless. Absolutely. That's his wonderful thought, because आजकल यही सब valuable बातें हर कोई बोल रहा है. Even if I am an adult or if I am talking to someone, it's obvious that if I don't listen to him for 5 to 10 minutes, if I'm seeing he's talking too much, I will be just shutting him off. Exactly. Even I am guilty of the need same. to worry. Right. Yes, exactly. I was saying कि जिनके दिमाग में already ये सब बातें feed हो चुकी हैं कि there is no one to listen to them, the kids. So how do you make them interact and share their feelings when they come to you? I mean, it is important कि वो भी अपने आप को एक बार कोई trauma रह भी जाए. So we need to make sure that they interact again, right? So what are the ways we can do that? Okay. So the biggest way is to come down to their level. बहुत बार एक बच्चा अपने माँ के साथ बहुत चीज शेयर नहीं करेगा, लेकिन एक दोस्त के साथ करेगा. अपने दीदी के साथ भी नहीं करेगा, लेकिन दोस्त के साथ करेगा. तो तब माँ को या दीदी को वो दोस्त का रोल निभाना पड़ेगा. जस्ट कम डाउन टू देयर लेवल. आपको स्कूल नहीं जाना है, मुझे भी ना स्कूल जाना पसंद नहीं था, और आपको पता है मुझे क्यों नहीं जाना पसंद था, तो शेयर योर एक्सपीरियंसेस, because that will make you children share their experiences. So there's a very nice concept जो कि ये book है, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. So he said something very interesting which I could relate totally 100%, which was something that is the most personal is the most general. जो कि सबसे पर्सनल है वो सबसे जनरल है. जब आप कहते हो कि किसी ने मुझे धोखा दिया, अब नॉट नेसेसरीली बॉयफ्रेंड, नॉट नेसेसरीली योर पार्टनर, बट कोई भी फ्रेंड, धोखा तो हम सबको मिला होगा. देन ब्रो, मुझे भी धोखा मिला, कैसे मेरा एक्सपीरियंस है. सो दीज आर द थिंग्स वी ऑल गो थ्रू. सो वन दैट इज द मोस्ट पर्सनल इज एक्चुअली द मोस्ट जनरल. तो आप जब अपने वल्नरेबिलिटी को शेयर करते हो, यू आर इनवाइटिंग, यू आर अट्रैक्टिंग अदर्स टू शेयर देयर वल्नरेबिलिटी एज वेल. सो जस्ट टेल देम, मेरा भी बचपन में ऐसा था, मेरा ना आंटी बहुत खड़ूस थी, ऐसा ऐसा करता था, एंड टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस, एवरीथिंग. दैट विल मेक द अदर पर्सन टॉक अबाउट हिज और हर एक्सपीरियंस. और अगर वो बच्चा है तो अब तो पूरा डिटेल में एक्सपीरियंस बता दो. उसके बाद मैं इस घर में गई, इस घर में मुझे चिप्स दिया था, उसके बाद वो खरूस आंटी के पास गई थी, खरूस आंटी ने तो करेला दिया था, चिप्स नहीं दिया था. सो ऑल थोड़ा सा बात घुमा के फिरा के स्टोरी टेलिंग के तरह
बच्चा को खुद के एक्सपीरियंस बताने स्टार्ट करो उनके लेवल पे आके। यू नो देयर इज नो बेटर टेक्निक देन दिस, वो बच्चा खुद से ही आपको सब कुछ बता। That is wonderful. That is very useful actually nowadays. सबको ये पता होना चाहिए कि कैसे किसी, क्योंकि we really don't realize it that we are doing something that is not good for the other, right? It happens unknowingly. So now let's come to adults. So nowadays we see that adults को भी बहुत issues हो रहे हैं, वो भी mentally बहुत disturbed रहते हैं, and we see it's because it can be because of workload or maybe because of some family pressure, peer pressure, trying to work good as you said. So Right. what are the most common issues that you have seen nowadays that are common in adults, you know, and how are they how can we cope up with these? Because mainly if I am right now having any kind of issue, then I'll think maybe मेरा result अच्छा नहीं जा रहा है, maybe मेरे friends मुझसे उनसे बात नहीं हो पा रही, so how should we cope up with such situations, such thought processes? Right. So मैं जब एडल्ट्स को सेशन देती हूँ, लाइक यंग एडल्ट्स, मोस्टली मैं यंग एडल्ट्स को देती हूँ, सो लाइक 16, 17, 18 या फिर टिल 25, 26, मैं एक चीज नोटिस करती हूँ दैट मोस्टली एडल्ट्स दे गो थ्रू कंपल्सिव थॉट प्रोसेसेस, ओवरथिंकिंग, जो कि सबका आजकल होता है, राइट? दैट एवरीवन, we all overthink. Almost 90% of the population, like at least 90% of those I know, बहुत ज्यादा सोचता है. So इससे क्या होता है? See, as I have said, mental health काम करेगा कि आपके overthinking कम हो, आपके anxiety कम हो, आपका fear for the unknown कम हो. लेकिन अगर यही आप unaddressed रख दो, इसी को अगर आप address ना करो, इसी को लेकर आप help ना seek करो, तो फिर ये जाके illness हो जाएगा, एक मेंटल इलनेस का रूप लेगा. सो द फर्स्ट स्टेप इज, देयर आर थिंग्स, द गुड न्यूज फॉर चिल्ड्रन, अनफॉर्चुनेटली जो करना है हम लोगों को करना है. दे कैन डू एनीथिंग बिकॉज दे आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन अस. बट यू नो 80% ऑफ द बॉल इज इन योर कोर्ट व्हेन यू आर एन एडल्ट. आपके मेंटल हेल्थ बहुत हद तक आपके हाथ में है. तो आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट कि क्या क्या नॉर्मली मैं देखती हूँ जब मैं इंटरव्यूज की हूँ या फिर व्हेन आई टॉक टू माय क्लाइंट्स. तो समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज कंपल्सिव जो थॉट प्रोसेस है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इससे बहुत ज्यादा इंसोम्निया होता है. यू नो, इंसोम्निया की रात बहुत जगने का. बचपन में तो मैं सोचती भी नहीं थी कि नींद की कोई प्रॉब्लम का चीज हो सकता है भाई, मतलब जाऊंगी लेट और हो जाएगा. But now I know even sleeping is a problem. I have experienced this. 2 बजे 3 बजे के पहले नींद नहीं आती. So, to manage your thoughts, there's one line I would like to share. The art of acceptance without holding on. This means कि आप accept कर लो आपके साथ जो भी हो रहा है, आप वो reality से भाग मत जाना. At the same time, उसको पकड़ के भी मत. How is that possible? There are 3 techniques. 3 techniques की हमारा जो thought power है हम थोड़ा control कर सकते हैं. Because thought जितना इधर उधर भागेगा, एक thought से एक, एक thought से एक, एक thought से एक, and we will hardly come back to the original thought. Right? कितना ज़्यादा हमारे mind diverted रहता है. इससे ही होता है chronic anxiety, इससे ही होता है अनजान का डर, fear for the unknown, and a lot more. So the basic is your thought, आपके सोच, आपके भावनाएं. ये हम कैसे कंट्रोल करें? सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज राइट डाउन योर थॉट्स. जस्ट राइट डाउन, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है जस्ट राइट डाउन कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मुझे किसके बात पर मुझे हर्ट हुआ, मुझे क्यों हर्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप आई शेयर, क्या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, क्या वो मेरा दोस्त है, क्या वो मेरा पार्टनर है, क्या वो मेरा फैमिली मेंबर है. जस्ट राइट डाउन इन एवरी डिटेल एंड ऐड फीलिंग्स. Add feelings like, write that I am feeling like this, I have felt this, मुझे ऐसा लगा. And then slowly जब क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स. When you write down, your thought process gets aligned, एक centered हो जाता है, right? So जब आप नोट डाउन कर लेते हो, आप कलेक्ट कर लेते हो वो थॉट, उसके बाद आप वो थॉट्स को सवाल करो.
सवाल करो इन द सेंस, आप पूरा प्रॉब्लम लिख डाले, उसके बाद आप सोल्यूशन के बारे में सोचो कि फाइन, दिस इज द प्रॉब्लम, आई हैव रिटन डाउन इन डिटेल, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड जब सोल्यूशन की तरफ चला जाएगा, व्हेन यू विल बी शिफ्टिंग, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग अ शिफ्ट फ्रॉम प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग टू अ सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग, नेचुरली यू विल बी फीलिंग बूस्टेड अप, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, आपको लगेगा ठीक है, मेरा सोच तो मेरे हाथ में है बॉस, अब मेरे एक्शंस भी मेरे हाथ पर हो। So, Yes. number one point, write down in details, you know, find the solution। अगर आपको लगता है एक सोल्यूशन नहीं 3-4 सोल्यूशन है तो बहुत ज्यादा अच्छा, लिख दो 3-4 सोल्यूशन क्या है, डिस्कस द सोल्यूशन विद द पर्सन कंसर्न्ड। अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ आपके मम्मी का प्रॉब्लम होता है तो जस्ट मम्मी को बोल दो कि मम्मी मेरे पास ये सोल्यूशन है, आपको क्या लगता है। सो डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन, सेंटर योर एनर्जी टुवर्ड्स द सोल्यूशन, नॉट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, आप अपने प्रॉब्लम को भी एड्रेस किए, एट द सेम टाइम आप सोल्यूशन की तरफ भी आए। सो इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट। तो उससे आपका माइंड प्रॉब्लम से डाइवर्ट हो जाएगा एंड आपका माइंड इस पर आ जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, आपके पावर की तरफ आ जाएगा। सो यू विल इन टर्न फील पावर, you will feel motivated from within। So my question is simple, it's like कि कभी कभी हम इतने नेगेटिव सोचते हैं, इतना नेगेटिव होता है कि हमारे लिए कुछ थॉट लिख पाना या उसका सोल्यूशन सोच पाना, इवन इंटरैक्टिंग बिकम्स हार्ड फॉर अस। तो वैसे सिचुएशंस में क्या करें, मींस उस टाइम पे नेगेटिविटी से कैसे हैंडल करें। तो उस टाइम पर जब आपको कुछ थॉट्स आ ही नहीं रहा, मतलब यू वांट टू से कि फीलिंग नेगेटिव हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, वो सारे थॉट्स नहीं आ रहा है दिमाग पे, राइट। उस टाइम पे टेक इट, डाइवर्ट योर माइंड। आप मोबाइल गेम खेलो, अगर वैसे तो पबजी बैन हो गया है अभी, तो कुछ और गेम खेलो, वीडियोस देखो, कुछ भी करो, डाइवर्ट योर माइंड। बिकॉज when you're feeling pleasant, pleasant is temporary, pleasant is not productive enough, we all know that. The good, everything has a good side as well, even if it is a temporary pleasure. When we are feeling pleasant, at the same time we cannot have negatives, we cannot have negative feelings. So that is the good side of those temporary pleasures. So उस टाइम पे आपका नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। सो अलाउ योरसेल्फ टू हैव टू बी डाइवर्टेड, अलाउ योरसेल्फ टू गो विद द फ्लो, टू एंजॉय बोथ सब। उसके बाद आपका थॉट जब आएगा, क्योंकि तब उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर तो बहुत अच्छा है, तो फिर वो थॉट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं आपके लिए, इसीलिए आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। बाद में यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन रोम अराउंड, यू कैन एक्सरसाइज। उसके बाद भी, क्योंकि एक्सरसाइज में क्या होता है, योर ग्रेटर लेवल ऑफ ब्लड गोज टू योर ब्रेन, आपका हार्ट पंपिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है, एंड यू नो द blood level increases and the blood reaches your brain। so उस टाइम पर there is a higher chance कि कुछ चीज अगर आपके सबकॉन्शियस में है तो आपके कॉन्शियस माइंड को फिर से हिट करे। then you will be again under that awareness कि हाँ कुछ तो है, मेरे कुछ चीजों में प्रॉब्लम था, ओ ये this was छत से अपने डायरी ओपन कर लिखा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन, इट्स नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। अगर बट देयर आर मोस्ट ऑफ द चांसेस कि आप देखना, आप नॉर्मली देखना कि थोड़ा माइंड डाइवर्ट करके, मस्ती करके, कहीं वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, उसके बाद लेकिन ये सब थॉट आएगा, नॉर्मली इट अगेन कम्स। एट दैट टाइम जस्ट राइट डाउन। एंड यू नो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि राइट डाउन, वी आर एक्चुअली, वी डोंट वांट टू डू दैट, वी अवॉइड दैट, बिकॉज हमें लगता है कि बहुत फ्लावरी लैंग्वेज पर लिखना है। नो, वी आर नॉट ट्राइंग टू बी शेक्सपियर, वी आर ट्राइंग टू बी आवरसेल्फ। तो जैसा भी, अगर किसी को लात मारने का मन कर रहा है तो वो भी लिख, क्योंकि अगर आप लिख नहीं ले रहे हो ना तो शायद आप सच में लात मार दोगे, लेकिन यू हैव टू टेक इट आउट समवेयर, तो अपने डायरी में निकाल दो। प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से लिखने के बाद सोल्यूशन के बारे में कि ये हो सकता है, एंड दीज आर द मल्टीपल वेज आई कैन सी। चीज क्या है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट जितना हमारे कंट्रोल पे है वो एक्सप्लोर कर देखते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। इट्स ओनली थ्रू दिस दैट वी विल बी फीलिंग पावर। हमें लगेगा कि हाँ चीज हमारे हाथ में है, वो पावर का जो बॉक्स है वो हमारे हाथ में। सो दैट विल इन टर्न इंड्यूस पॉजिटिव हॉर्मोन्स इन आवर ब्रेन, जो कि एक फील गुड वाला फैक्टर है। इसीलिए बोला जाता है दैट व्हेन वी एक्सरसाइज, व्हेन वी वॉक, वी फील मोर प्रोडक्टिव बिकॉज आवर थॉट्स गेट अलाइन्ड।
जब बहुत जगह थॉट भटकता रहता है, बट फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपके थॉट अलाइंड हो जाएगा, मेडिटेशन के बाद आपके थॉट अलाइंड हो जाएगा, देन यू कैन टेक इट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द सॉल्यूशन. So, okay, now there is one thing that is common in everyone right now कि वो अपने thoughts means अपने जो feelings है वो ज़्यादा share नहीं कर रहा है किसी के साथ भी. Right. कोई किसी के साथ ज़्यादा interact नहीं करता है, not even with our own parents or someone very close to us जिसके साथ हम पहले सब share करते थे, but अभी शायद बिल्कुल conversation down हो गई है या फिर अब खुद से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है, तो एक बैरियर टाइप का बन जाता है सबके बीच में. आप अलग स्टैंड आउट करने लगते हो. तो वैसी सिचुएशन से उस बैरियर को कैसे तोड़ें, क्योंकि नॉर्मली आजकल ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लोग ज्यादा फीलिंग्स अपनी शेयर नहीं कर पाते हैं. तो हाउ टू ब्रेक दैट बैरियर ऑफ थिंकिंग कि उसको क्या लगेगा, क्या सोचेगा वो, तो उस बैरियर को कैसे हटाएं हम लोग. सो इसका एक्चुअली रीजंस बहुत ज्यादा हो सकता है. इट कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस. वन रीजन, अ मेजर रीजन कैन बी ट्रस्ट इशू, कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. राइट, अ ट्रस्ट इशू इज अ मेजर इशू. तो इसमें हमें बस एक चीज सोचना है कि एक बार देख लेते हैं भरोसा करके क्या होता है. मैक्सिमम वो किसी और को जाकर बता देगा. तो हाँ, ऐसा पहले तो ऐसा सीक्रेट बताऊंगी कि ज्यादा डेंजरस नहीं, जो कि अगर बताओ, अगर 5 लोगों को पता भी चले तो आई विल बी फाइन. You can take baby steps, because only when you are sharing your feelings, you will, as I already said, you will be attracting the other person to be sharing their feelings as well. And उससे क्या होगा, उससे एक ऐसा स्फीयर क्रिएट होगा, उससे एक ऐसा स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर एक दूसरे का बात लोग सुनेंगे और लोग बताएंगे. एंड सबसे बिग थिंग व्हाट यू कैन डू इज, एक प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि प्रॉब्लम शेयर करना मतलब वर्बली ही करना. We should give that space to people कि देखो, please, I am there for you. First of all, we can take the initiative. अगर हमें लग रहा है, for example, there's a group of 10 friends. तो उसमें एक बंदा है जो कि आ रहा है ग्रुप में, बात कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, लेकिन फॉर द लास्ट 2 months एकदम कॉर्नर पे बैठ रहा है. हम कॉल कर रहे हैं लेकिन वो आ रहा है जस्ट टू गिव अस कॉम्पनी, लेकिन ही इज नॉट देयर, ही इज मेंटली नॉट प्रेजेंट. तो हमें समझ आ रहा है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद दैट. तो एक चीज है, नॉर्मली जो लोग, जो इंसान सबके सामने चीज शायद शेयर नहीं कर पा रहा है, गो फॉर 1-to-1 कॉन्वर्सेशंस. ये एक बहुत एक कॉमन चीज जो मैं लोगों में देखती हूँ कि जब बहुत ग्रुप सेशन कभी कभी हो जाता है, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट ओपन अप. लेकिन 1-to-1 सेशन में पीपल हैव अ लॉट ग्रेटर चांस टू ओपन अप. तो अगर आप एक पर्सन को देख रहे हो कि बार बार ही और शी इज नॉट गेटिंग द कंफर्ट जोन टू टॉक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, जस्ट आइसोलेट द पर्सन, ब्रिंग देम टू अ कॉर्नर विथ योरसेल्फ. आइसोलेट मतलब बस वो अकेला नहीं, वो और आप. तब आप उससे ये सवाल करो कि आई एम सीइंग सम चेंजेस इन यू एंड आई रियली वांट यू टू नो दैट आई एम देयर फॉर यू. आपका जो कंसर्न है, आपका फील करना इज नॉट एनफ. यू हैव टू लेट द अदर पर्सन नो यू आर कंसर्न. एंड देयर इज अ वंडरफुल लाइन दैट नोबडी केयर्स हाउ मच यू नो अनलेस एंड अनटिल दे नो यू केयर. तो बस उस इंसान को यही फील करवाना है दैट यू केयर फॉर हिम, यू आर देयर फॉर हिम और यू आर देयर फॉर हिम. बस यही एक स्टेप है कि आप उसको थोड़ा अपने पास लेकर आओ, उनको बोलो कि मैं आपके साथ हूँ, आई रियली केयर फॉर यू. That is the only way to get the person to speak about his issues. And one more thing that actually I was thinking कि बहुत लोग ना बात करने में comfortable नहीं होगा, even if it is 1-to-1. तो बहुत सारे स्टाइल्स होता है. कुछ लोगों का होता है सामना सामनी नहीं कर सकता है, फोन पे कर सकता है. They are basically because they have a auditory kind of a mind. वो लोग ज्यादा विजुअल टाइप के इंसान नहीं होते, राइट? सो यू हैव, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप ट्राई कर रहे हो वो स्पेस क्रिएट करने का, फिर भी आप देख रहे हो कि वो पर्सन अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा शाई है, देन यू कैन से दैट लिसन, अगर तुम ऐसा नहीं बताना चाहते तुम मुझे फोन पे भी बता सकते हो, तुम मुझे मैसेज लिखकर भी बता सकते हो, बट मुझे प्लीज बताओ बिकॉज आई रियली वांट टू बी देयर विद यू. आई नो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आई वांट टू बी देयर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसको आपके तरीके शायद वो नहीं बोलेगा, वो शायद मुंह से नहीं बोलेगा, शायद लिख के बोलेगा, लेकिन एक कुछ ना कुछ टेक्निक से वो बोलती है.
अगर उसे सच में लगता है और आप उसे फील करवा पा रहे हो कि आप उसका, you have to just understand that person's technique of speaking up. It can be through writing, it can be through telephonic, it can be through video call or face to face. एक चीज जो कि एक्चुअली पॉइंट्स में मैं सोच रही थी कि बोलूंगी बट आई मिस्ड आउट, stay connected to your roots, to your traditions. क्योंकि actually I've recently started studying about what the different parts of spirituality, what the different parts of religion, advises you about your mental health, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड विद साइंस लगा, बहुत ही साइंटिफिक है ये चीज. And I have practiced this and I have actually overcome anxiety through this. Practice meditation. Every single day, try to practice meditation, even if it is for 2 to 3 minutes. अब क्या होता है, मैं खुद के स्ट्रगल की बात कर रही हूँ. When I have tried to do meditation, बहुत सारे लोगों का यही है कि उन लोगों को नींद आ जाता है. Then that is the good. The purpose of it is actually served. आपका नर्व काम डाउन हो गया. जहां आपका थॉट्स इतना मतलब जंप कर रहे थे फ्रॉम वन फेज टू अनदर, यू आर फीलिंग स्लीपी, सो दैट इज एक्जैक्टली द मैजिक ऑफ इट. आपका पूरा नर्वस सिस्टम को कूल डाउन हो गया. अनदर थिंग इज कंसंट्रेशन, जो क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्या होता है, ये कांट कंसंट्रेट. जैसे स्किल्स की बात मैं करी कि मैं कुकिंग कर रही हूँ या फिर कोई नया स्किल कर रही हूँ, लेकिन अगर दिमाग वहां पर नहीं है तो फिर आई विल नॉट फील गुड. वो अल्टीमेटली जाकर मेंटल हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगेगा मैं पढ़ रही हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे आई नो कि कुछ नहीं करेगी. सो वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए जब आप मेडिटेशन करते हो, दीज आर द टू थिंग्स आई वुड सजेस्ट, जो कि आपका बहुत हद तक कुछ बेनिफिट्स है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी. once you, वैसे कुछ भी posture में आप थोड़ा just make your backbone straight, because your posture also has a very direct link with how you feel. अब खुद जब एकदम straight होकर बैठोगे, you will feel very good about yourself. और जब आप ऐसे करके बैठोगे, you will be feeling low automatically. So ये बहुत छोटा छोटा चीज है जो हम आजमा सकते हैं बहुत easy. So when you actually sit, yeah. So when you actually sit straight and you take deep breaths, जैसे प्राणायाम है कि हम अगर डीप, तो क्या होगा, आप जब मेडिटेट कर रहे हो बस अपने सांस की तरफ फोकस करने की कोशिश कीजिए. कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है. अगर थॉट्स आ रहा है उसको रोकना भी मत, बस सांस की तरफ वापस अवेयरनेस हो जाए. यही मैं जो कही थी, द आर्ट ऑफ अवेयरनेस विदाउट होल्डिंग ऑन. होल्ड ऑन, थॉट आएगा, जस्ट डोंट होल्ड ऑन, जस्ट गेट बैक टू योर ब्रीदिंग. तो आपका थॉट जब आपके ब्रीदिंग की तरफ फिर से फोकस में आ जाएगा, अलाइन हो जाएगा, इससे आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा, आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत हद तक इंक्रीज होगा. और अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग से आपका कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, देयर इज अनदर थिंग यू कैन डू, बिकॉज आवर ब्रेन इज बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी इन नेचर. आप कुछ मंत्रा चैंट कर सकते हो, आप और कुछ नहीं तो बस आप ओम कह सकते हो, जस्ट ओम 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 लाइक दैट एज मेनी टाइम्स एज यू फील लाइक. इससे क्या होगा, जो आपका माइंड इतना तरफ भटक रहा था वो अब दो जगह पे है, आपके सांस के तरफ है और वो आपके वॉइस के तरफ है, वो ओम के तरफ है. So from 1,000 of places, it's finally getting aligned to 2 places. धीरे धीरे आप लगोगे कि it will be aligned to entirely your own system. इससे आपका मेंटल हेल्थ क्या, आपका ब्रेन हेल्थ, योर कंसंट्रेशन पावर, योर क्लैरिटी, योर एबिलिटी टू टेक बेटर डिसीजन, कम टाइम पर ज्यादा अचीव करना, जल्दी जल्दी चीजों को मेमोराइज करने का पावर, जो मेमोरी का शक्ति, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा. So your entire clarity will be boosted up. One more thing, there are also some more benefits of this. Blood pressure आपका कम हो जाएगा जब आप बस आपका माइंड आपके ब्रीदिंग आएगा, किसी और की तरफ नहीं. विद स्लो प्रैक्टिस ये भी हो जाएगा कि भटक दूसरी तरफ भटकाएगा ही नहीं, अपने ब्रीदिंग की तरफ ही आएगा. इसे कहते हैं क्रिया मेडिटेशन. तो इससे क्या होगा, योर ब्लड प्रेशर विल डिक्रीज, योर जो हार्ट रेट अगर बहुत जल्दी जल्दी रहता है हम लोगों का, जिन लोगों का थोड़ा हाइपर टेंशन का चांसेस है, वो डिक्रीज हो जाएगा. योर स्ट्रेस विल डिक्रीज, योर बॉडी का स्ट्रेस, द फिजिकल स्ट्रेस, योर मेंटल स्ट्रेस, ये सब. So it is one simple solution for your mind, body, and soul. That's it. Thank you.
थैंक यू सो वेरी यूजफुल फॉर एवरी नाउ, थैंक क्योंकि यू। अभी जैसे सिचुएशन है, कोविड हो या फिर टाइम जितना स्ट्रेस ले रहा है इस टाइम पे, these are something very important for us to know that how to handle this kind of stress. So thank you for Thank giving your time to us and letting our viewers know you can help themselves in themselves. I mean, rather than for help from others, they helping them. Thank you Very very much. And important you for know what, everyone to Riya, there know. are so many things which I have told which I myself do not practice. लेकिन practice करके तो बहुत फायदा मिला. But again, the destructive human nature, I have again gone back to my पहले का practice. जो जिसके No, लिए इतना it's not improvement possible आया, doing I did not anything. actually Yeah, continue that. But after it's today, just I will actually continue. yeah. Yeah, it's like you can't follow everything that you say or you can't follow everything that you think. So even then, even after even knowing and giving it a try, what right? So even I think that I will also think about waking up at 30. I don't really do. So this kind of advice, let's do It's it for okay. You your know what? mental We health just and need to take baby yeah. steps. Just छोटा अगर कुछ हो तब भी खुद को खुद को नोटिस दो. आपका जो फेवरेट है आइसक्रीम, अभी Yeah, तो आइसक्रीम मैं actually, सजेस्ट नहीं exactly. करूंगी in this situation. If I thought So if yeah, I'm going to give myself a pat in the back, wow, you did something useful, yeah, but exactly, yeah, exactly. We yeah, need so that even small things reaffirmation. can make us happy. Exactly. Thanks That for is the letting thing. me know Big small little changes things can make us lie happy. in only Yes, the small yes, things. Mhm. exactly. Give just of yourself in the core level can actually help the entire body. Uh, Make healthy not only mentally but also, as you said, it helps in blood controlling your